ऐसे पैरां नूं जिहड़े सेवा च नहीं लगदे। विण सेवा त्रिग हथ पैर होर नेफल करनी। सेवा तो बिना त्रिकार है कहंदे हत्थां नूं, त्रिकार है पैरां नूं, ते होर निसफल है कोई भी करनी सेवा तो बिना। फिर भाई साहब बचन करते ने पंच बार रंग जाए, क्योंकि इथे सेवा दा गुरमत द्वारा सिद्धांत दृढ़ करते ने। सेवा तो संसार च बहुत लोग कहते ने ऐ सेवा करो, ऐ सेवा करो, ऐ सेवा करो, पर भाई साहब कहते ने जे तू सेवा करनी है तो साध संगत विच आके कर। जे तू सेवा करनी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कर, सेवा करनी है गुरु की कर, सेवा करनी है साध संगत दी कर। और विच ना चलाया करो। सेवा करनी है। इस साध संगत एक धरती है जिहदे च सेवा दा बीज फलीभूत हुंदा है। ये धरती ऐसी है। कलगीधर पिता ने वचन के कि एक खालसा साध संगत है जेड़ी धरती में परखी हुई है। ये परखी हुई धरती है। सियाणियां दी हुंदी है ना धरती परखी हुई, भई इहदे च बीज हरा हुंदा है, इत्थे फसल चंगी हुंदी है। इवें कलगीधर जी कहंदे ने कि बीज सेवा दा, बीज नाम दा केड़ी धरती च? साध संगत रूपी धरती च। जिथे सिख एकत्रित हुंदे ने, जिथे धर्मसाल है, जिथे गुरुद्वारा है, ये धरती कहंदे परखी हुई है। इथे सेवा करी। सेव करी इन्हीं की पावत और की सेव सुहात न जी को। दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान न लागत नीको। आगे फले इन्हीं को दयो जग में जश और दियो सब फीको। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है सब ही इन्हीं को। कलगीधर पिता वचन करते हैं कि सेवा करी मैनू इन्हां सिखां दी चंगी लगती है। इत्थे सेवा करी, इत्थे सेवा करी। प्रथा चली आउंदी सी पहला, सेवा ब्राह्मण दी सेवा। ब्राह्मणा ने एक भरम जाल बनाया होया सी समाज दे ऊपर, पर गुरु साहिबा ने वो भरम तोड़िया के भरम गढ़ तोड़िया। जिस वेले साहब हरमंदर साहिब दी इमारत दी संपन्नता हुई, संपूर्णता हुई, हरमंदर साहिब दी गुरुद्वारा साहिब दी जदों इमारत बनी हरमंदर साहिब दी, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जदों संपूर्ण कीती बिल्डिंग, उस वेले पहला थाल जेड़ा कारजां दी संपूर्णता ते कोई मर्यादा सी पुरोहित नूं जांदा सी, पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने
ਉਹ ਥਾਲ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਉਸ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਥਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਮਰਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੋ। ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਚੋਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਜੂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ, ਸਤਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੂਤ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਧਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ।
संतोख दा सूत, जत दियां गंढां ते सत दा वट। ਐਵੇਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਾਉਣੇ ਤੇ ਸੂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਲਾ ਪਰਸੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हे पंडित, हे ब्राह्मण, जे तेरे कोल ਇਹ ਸੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਦੇ ਦਇਆ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਦੇ ਜਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, कदे सत भी टुट सकता है। ये शुभ गुण नहीं टुटदे, ये धागे तो टुट जाने ने। ना यो टुटे ना मल लगे, ना यो जले ना जाए। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। तो पहला तो ही इस तरह दे जो भरम जाड़ इंसान दे गल विच पाए हुए सी, भारी भयंकर जंजीरां गुलामी दियां, ये भरम पखंड दियां सी, वो सतगुरां ने दूर कीतियां। आखर हौली हौली प्रथा बिल्कुल बंद कर दिती। होर सेवा बंद करो, केवल साध संगत दी सेवा। होरना पासियां दी सेवा बंद करके केवल संगत विच सेवा कर, लंगर लगा ए सेवा। कल दे दीवान च क्या सी ना, भाई आदम नूं लंगर दी सेवा चों पुत्र बख्शिया बिरध अवस्था विच महाराज। लंगर दी सेवा, सिख दी सेवा, संगत दी सेवा। ताई धन गुरु नानक पातशाह बचन करदे ने, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है। जिस दुनिया चाके कोई सेव कमावेगा ते दरगाह विच थां प्राप्त कर लेगा। दरगाह विच ओनू थां प्राप्त होवेगा, दरगाह विच ओदी जगह होवेगी। जेड़ा इत्थे गुरु घर विच सेवा करेगा। महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदर साहब सोना लगाउण दी सेवा एवें तां नहीं कीती। इन्हां गुरसिखां नूं समझ आ गई कि गुरु घर जिन्नी सेवा कर लईए वो सफली है, वो फल देण वाली है। जदों हजूर साहब नादेड़ गए ते उत्थे महाराज दा अंगीठा साहब नहीं सी बनिया। महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लग्या कि अंगीठा साहब नहीं बने, क्योंकि उत्थे पता लग्या कि कलगीधर जी दा बचन है, जेड़ा साडा अंगीठा बनावेगा ओदी जड़ पुट्टी जाएगी, भाव ओदा नामो निशान नहीं रहेगा, ओदी अंश बंश नहीं चलेगी। ये क्या महाराज ने। ते कुछ लोग दानश्वरे भी कहते ने, अंग्रेजा ने इस इतिहास की गल नूं लैके ताना मारिया सी महाराजा रणजीत सिंह नूं कि साडे नाल तां मुकाबले करदा है, पर इहदे गुरु दी समाधि ते कुत्ते बेअदबी करदे ने। भाव उधर ध्यान दवाया, वो जिद विच बनावे ते इहदा सत्यानाश होवे, भी इहदी जड़ नहीं रहेगी, इहदा नामो निशान नहीं रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह ने फिर एक गल कही कि गुरु साहब का अंगीठा साहिब जरूर बनेगा, गुरु साहब की याद जरूर बनेगी। उस याद तो सेवक अपना सब कुछ वार देगा।
महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, जे बचन है कि ओदा कुछ नहीं रहेगा ते मैनू प्रवान है, पर मेरे गुरु दी याद तां बने, मेरे गुरु दी याद तां होवे, दरबार बने, अंगीठा साहिब बने। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने अंगीठा साहिब बनवाया हजूर साहिब। ये पता हुंदियां भी कि इत्थे बचन है ये, ओ कबूल कीता कि मेरा कख ना रहे पर गुरु दा होवे, गुरु दा अंगीठा साहिब जरूर होवे। हुण उन्होंने बनाया, चलो समय आए गए, राज चले गए, भाग चले गए, परिवार चला गया, कोई ना रहा, पर धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज एक वचन करते सी कि अज महाराजा रणजीत सिंह दा नाम नहीं, बाबा जी कहते सी वेखो ओ हरमंदर साहब दे मुख द्वार ते महाराजा रणजीत सिंह दा नाम है। एक पासे है कि दुनियावी तौर ते अगों कोई ना रहा, पर दरगाही तौर ते नाम उदों तक जुड़ गया जदों तक धरती रहेगी। ते जे आम राजे महाराजा दे धीआं पुत्र पोतरे अगां चलदियां ने अंश बंश, पर जे कुरीतियां विच चले गए, शराबां विच डुब गए ते कादे चले, कादे रहे। जिन्हां ने दुनिया ते कोई चंगा काम ना कीता वो रहे भी ना रहिया वर्गे, उन्हां दा रहना भी किस कम, उस जद नूं भी की करना जिहड़ी भैड़े पासे चले जाएगी। कहते बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का बचन है भी धन है महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें एडा वड्डा हिरदा कीता कि भावें मेरी वंश का नाश हो जाए, मेरे घर विच दीवा जगाउण वाला कोई ना रहे, पर अंगीठा साहिब जरूर बनेगा। ते दूसरे शब्दों विच महाराजा रणजीत सिंह अज जिउंदा है, गुरु दे नाम नाल, गुरु दे धाम नाल वो जिउंदा है। उन्होंने कौन मार सकेगा? अज आपां भी नाम लै रहे, वो जिउंदा है, वो जिउं पिया, ओदा दरगाह च नाम। हरमंदर साहिब जेड़ा भी जाता है दर्शनी ड्योढ़ी ते मुख दरवाजे ते हरमंदर साहिब सोने विच उकरिया होया कि सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास साहिब पातशाह ने कृपा करके अपने सेवक महाराजा रणजीत सिंह पासों इस सोने की सेवा करवाई। आ लफ्ज लिखे, पहला मूल मंत्र लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये लिख के फिर थले लिखिया हरमंदर साहिब दे मुख दरवाजे ते नाम जिउंदा है महाराजा। बस इन्नी समझ दी लोड़ है, समझ दी लोड़ है। जेड़ा गुरु घर विच सेवा करेगा, जेड़ा संगत विच सेवा करेगा। भाई गुरदास जी इत्थे कहते हैं पंच बार गंग जाए बार पंच पराग नहाए तैसा पुन एक गुर सिख को नवाहे का। पंज बार कोई गंगा जाए, पंज वारी पराग राग जिथे त्रिवेणी इशनान किया जाता है। गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप इलाहाबाद प्रयागराज जिथे कुंभ लगता है। कहते पंज वार गंगा का इशनान करे,
ये अज दे हिसाब नाल ना समझना। अज तो तुसी लुधियाने तो कार चुको, सवेरे नहा के शाम नूं घरे आ जाओ, पर ये बचन उदों दे ने जदों कोई पैदल ही जांदे सी। हाँ, ये ग्रंथ की रचना भाई गुरदास दियां वारां अज दे पंजाब च भाव हरमंदर साहब अमृतसर साहब रचना होई जां गोइंदवाल साहब रचना हुई। उस वस दे पंजाब चों कोई पैदल तुरे ते गंगा जाए, इशनान करके वापस आए, फिर कदे जाए, फिर इशनान करके आए ते 5 बार गंग जाए, फिर बार 5 पराग नहाए, 5 बारी इलाहाबाद तरबैणी संगम दा इशनान, पैदल जाना, इशनान करना, वापस आना। मशक्कत मशक्कत 5 बार गंग जाए, बार 5 पराग नहाए। कहते जिन्ना ये फल है ना किसे 5 बार गंगा दा, 5 बार पराग राग दे तीर्थ दा जिन्ना फल किसे नूं मिले, भाई गुरदास कहंदे गुरु नानक दे घर विच ए फल तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। उस वेले खूह तो पानी लियाना ते किसे सिख दा इशनान करवाना, कहंदे ओना फल उसनों मिल जाएगा जेड़ा ओने मशक्कत तीर्थां ते करदा है। भाई गुरदास ये कह रहे गुरु घर दा सिद्धांत दृढ़ करवा रहे हैं। अगे कहंदे सिख को पिलाए पानी, भाओ कर पुरखैत। कहंदे सिख नूं शरधा नाल राहगीर सिख है तुरिया जांदा है, प्यास लगी है, प्यार नाल गुरु का सिख समझ के उन्होंने घरों कोई पानी का गिलास पिया दिंदा है। भाव कर पुरखैत, कहंदे कुरुक्षेत्र दे तीर्थ दे इशनान दा फल प्राप्त है उसनूं। इत्थे भाई गुरदास साहब ये समझाना चाहते ने उत्थे जाके की फल तू प्राप्त करदा है। जे आ गुण तेरे विच आ जाण ते सारे फल तेरे कोल चल के आ जाते ने। ओ फल तेनों गुरु घर दी सेवा चों मिल जाते ने। सिख को पिलाए पानी, भाव कर पुरखैत, अश्वमेध जग फल सिख को जिवाएगा। ते अश्वमेध जग फल सिख को जिवाएगा। जिवाए दा अर्थ है, ये हरियाणे दी बोली है जिमना। जिमना तो बनिया जिमाए। वावा शब्द आया उत्थे कवित विच, पर है जिमाए, जिमे, जिमना। जिमना दा मतलब खवाना। हरियाणे दी बोली है जिमना, भोजन खाना। असमेध जग फल, असमेध जग कोई करावे ते वो भी संपूर्ण हो जाए, ओदा जिन्ना फल है। कहंदे सिख नूं लंगर छकाउण दा उन्ना फल है। सिख असमेध जग फल सिख को जिमाएगा। सिख नूं भोजन छकाउण दा। ते गुरु घर ने देखो किन्ने पुन फल सिख नूं दिते ने, किन्ने पुन फल। जदों संगत विच सिख जाके लंगरां दी सेवा करदा है, किन्ना पुन फल। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने होर वधाता है नाल
कि महापुरख होर किरपा कर देंदे। ये तो है प्रसादा घर बुला के सिख नूं छकाउणा, एक गुरु घर की प्रथा भी है। प्रथा भी घर विच 5 प्यारिਆਂ नूं बुला के लंगर छकाउणा, फिर अरदास करवानी। किड्डा वड्डा फल मन्निया जाता है, बहुत वड्डा महात्म है। पंजी परमेश्वर है, एक सिख दो साध संग पंजी परमेश्वर, पंजां च परमेश्वर है। ये गुरु घर की मर्यादा है। इतिहास पढ़ के वेखो, सूरज प्रकाश ग्रंथ विच भी जिक्र आउंदा है बार बार 10 पातशाहियां दे समय कि सिख दा कोई काम अड़िया होवे, ओ जाके गुरुद्वारे गुरु घर विच कड़ा प्रसाद दी देग करे ते सिखा तो अरदास करवावे, फिर वो देग वंडे, खुली देग, वड्डी देग। वो चले गए दिन, मर्यादा चलियां गईयां, इन्ने इन्ने गप्फे वंडदे, वड्डियां वड्डियां देगां कड़ा प्रसादियां तैयार करवा के, अरदासां करवा के वंडदे, खुले गप्फे। ते महाराज कहंदे ओदा कारज सिद्ध होवे, ये बचन। ते जे फिर भी बहुता कोई अड़िया ते फिर भी अड़िया रवे, कहंदे 5 ਸਿੰਘਾਂ तो नाम जपण वालियां तो गुरु दे हजूर अरदास करवावे, कड़ा प्रसाद करवा के, कड़ा प्रसाद करवा के, फिर 5 दा कहना कलगीधर नहीं मोड़दे, 5 दी बेनती नहीं मोड़दे, 5 दा बचन नहीं मोड़दे। ये गुरु घर की मर्यादा है। ते बाबा जी ने होर आगाह की कि एक तां घर आउणा संगत ने जां 5 ने जां एक सिख नूं भी छकाउंदे आ, कईयां दे नेम है। कई बुजुर्ग कहते सी दूजे तीजे दिन, जाओ गुरुद्वारे भाई जी नूं बुला लियाओ, लंगर छकाओ। गुरु घर विच, हाँ घर विच गुरु घर की प्रथा चलती रहे। ये सिक्ख्या बच्चियां नूं दिंदे सी बुजुर्ग। जब भाई जी नूं अज लंगर तैयार करो, आपां सारे उदों छकांगे, गुरुद्वारे दे भाई जी नूं बुला लिया, नाले उन्हां ने आके कोई पाठ करना, सारे परिवार ने कोल बहना, नाले सारियां ने अरदास तो बाद लंगर छकना। एक घर विच प्रथा चलाउंदे सी बुजुर्ग। तुसी भी सारे घरां वाले हो, ध्यान दिओ इन्हां बातां वल, सुन के ही नहीं चले जाना, पल्ले बन जाओ। एक घरां विच चाल, गुरसिੱਖੀ दी चाल ढाल चले। ते कदे कदे 15वें दिन या महीने बाद भी हुण 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ छकाउणा है लंगर। 5 ਸਿੰਘਾਂ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लंगर। एक गुरसिख गुरु साहिबां दे कोल ढाल लिया है। हाँ पहला गल वो कर लीए कि बाबा जी ने इसनों किवें वादे च कीता कि जेड़ा चल के किसी ने आना है घर लंगर छकना, वो मुशक्कत अगले नूं कोई तुहाडे घर आउण दी, संगत नूं। पर बाबा जी कहंदे सी बई घरों तैयार करके इत्थे ही संगत नूं छका दे लिया के, वो खेचल भी ना हुई। वो खेचल भी आपे ही लंगर तैयार कीता, आपे ही लै गए, वो खेचल भी अपने ते लै लई ते बहुते ज्यादा पुण्य प्राप्त कर ले। बाबा जी को पिंडा तो शहरा तो गुरसिख लंगर तैयार कर करके लियाउंदे। नानक सरफण भी वारियां प्रसादे दियां उवें लगदियां।
बरसियां ते लखां प्राणियां दा इकट्ठ हुंदा, पर लंगर अज भी किसी नूं नहीं पता कित्थों आउंदा किवें आउंदा। उवें ही आउंदा, ट्रालियां ट्रकां ते। बाबा जी ने उस तो भी वध पुन बना दिते कलयुगी जीव दे। ये जीव दे पुन होर बनाते, होर। मैं कल भी बेनती की सी उत्थे भाई दिलबाग सिंह दे घर कि धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने कपूरे पिंड विच बचन कीता, कपूरे पूरे किसे ढंग नाल बाबा जी कोई दरगाही ना दात उत्थे दे जांदे सी, आउंदे सी। जदों जिवें मोगे च किहा भी दरगाही मोगा खोलता, जिवें आ संत अजमेर सिंह जी दे पिंड गए, सांदे फिरोजपुर दे कोल पिंड है, कच्चे जीरे रोड ते सांदे 7-8 किलोमीटर जीरे वाल नूं है फिरोजपुर तो। सांदे पिंड है, सांदे। जदों बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उस पिंड च गए, उत्थे कह गए सांदे साडे सांझे। ये उन्हां दी एक तकिया कलाम सी, कोई बख्शिश इवें कर जांदे सी, सांदे साडे सांझे। आ हुण जदों कदे कदे तां साल विच कई बारी रह जांदा है, साडे आलस कारण जां रुझेविਆਂ कारण दीवान उत्थे देईदा ना। जदों पिंड वाली संगत सांदियां वाली गिणदी है, तकरीबन 27-28 पिंडां चों संगत आउंदी है बाबा ईश्वर सिंह जी दी याद विच उत्थे पिंड च। इन मैं क्या उत्थे जदों कहीदा, मैं क्या बाबा जी कह गए सी सांदे साडे सांझे। किन्नी सांझ पा गए उस पिंड दी, किन्ने इलाके नाल सांझ पा गए। सांदे साडे सांझे, इन्नी वड्डी सांझ। एक एक बचन च उन्हां दे गहराई सी ते दरगाही बख्शिश नाल जोड़ दिंदे सी। मोगे मोगे कहंदे मोगा ही खोलता दरगाह दा, अमृत दा मोगा ही। कपूरे पूरे ते मैं क्या कपूरे पूरे झाती मार लो, जेड़े प्रशादियां दियां वारियां लाउंदे रहे हो, सारे सुखी वसदे हो। पूरे ही करते महाराज ने, सारे सुखी वसदे हो। बड़ा ही सुख दिता बाबा जी ने, सारे पूरे करते, अधूरा कोई छड़े ही नहीं। कपूरे पूरे। इन्हां बचनां नूं जिन्ना गहराई नाल सोची जाओ, ओने ही पूरे उतरदे आ कसवट्टी ते, विचार दी कसवट्टी ते। कपूरे पूरे। बख्शिशां चलदियां ने। ये जिथे महापुरुषां दे बचना रूपी पंजे लग गए, उवें ही चलदे ने, उवें। ते बाबा जी ने पुन होर वधाते भी। नानक सर जदों आना है प्रशादा ले आना है, प्रशादा ले आना है। ते संगताओं में सिर ते टोकरा प्रशादियां दा, हाथ विच दाल सब्जी दी बाल्टी, ते सज्जे हाथ विच सिमरना कि वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां प्रशादा आउंदा है। धन बाबा जी होर पुन वधाए। गुरु साहिबां वेले एक सिख ने ढाल लियांदी, बड़ी सोहनी ढाल। एक गैंडा जिहड़ा जानवर हुंदा है, इस गैंडे दी चमड़ी दी ढाल बनाई, बड़ी सोध सोध के। तो शस्त्र हुंदा है, शस्त्रां दी मार चलदी है, तलवार दी मार, नेजे दी मार, डांग दी मार, गुरजां दी मार। सिपाही नूं जंग दे मैदान विच बचाउंदी है, बचाव करदी है, उहनूं ढाल कहंदे।
वो ऐसी ढाल बनाई तो बड़ी चाव नाल, पर कई बारी सेवा विच सिख मान कर बैठता है। जदों मत्था टेकिया ले जाके ओदी सिफत ही करन लग पिया, हे कलगियां वालिओ पातशाह, ये ढाल इहो जी बनाई है बड़ी सोध सोध के, ਇਹਦੇ ਚੋਂ फलाना शास्त्र भी असर नहीं करेगा, फलाना भी नहीं करेगा, गोली भी नहीं असर करेगी। ਇਹਦੇ ਚ कोई भी सूरबीर सूरमा ਇਹਦੇ ਤੇ शास्त्र चलाए असर ना करेगा। अच्छा, गुरु साहब सोचते हैं भी सेवा का मतलब हुंदा मान रहत कर देवे, सेवा ही तो मान रहत करती है, ते जे सेवा करके ही मान आ गया फिर ये तो गल ठीक नहीं। अपनी ढाल बनाई दी सिफत करी जा रहे, गुरु दरबार च तां आउणा गुरु दी सिफत लैण। साडी सचखंड नाल सांझ पैनी है सिफत नाल। जे गुरु दी सिफत करदे हैं ते जे अपनी सिफत करन लग पए फिर संसार ना तां गंढ पै सकदी है, दरबार नाल नहीं पै सकदी। सिफती गंढ पवे दरबार। सच्चे दरबार सचखंड नाल अंतर आत्मे पार ब्रह्म नाल गंढ पैनी है सिफत नाल। ते जिथे मैं होनी आ गए उथे सिफत नहीं रहिंदी, जिथे तू तू रहिंदा है उथे सिफत रहिंदी है, जिथे मैं हो जाती है उथे सिफत नहीं रहिंदी। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तो। ये तो मन की अवस्था है। जदों मैं आ गई फिर तू नहीं। हाँ मैं नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे इकठाए। हाँ मैं दा नाम नाल विरोध है, दोनों एक थां ते नहीं बसते। बाबा मैं मिटनी, सिख ने मैं ही तो मिटानी है, ते जे मैं ही आउंदी रही तू किवें आएगा। महाराज कहंदे सेवा तक करनी सी मैं मिटदी, झाड़ू फेरना सी तां कि मैं मिटदी, अंदरली सफाई हुंदी। गुरु घर पोचे मारने सी कि अंदरली सफाई हुंदी, मैं मिटदी। कई बारी पोचा मारने वाला मार दी है हम है। तो सिफत गुरु दी करनी है ते सिफत अपनी करन लग पिया। कलगीधर विचार कर रहे हैं क्योंकि गुरु ने तो मैं बढ़नी है तां गल बढ़नी है। निरंकार नाल मेल तां होना जदों गुरु मैं कढ देवेगा, ते जे गुरु ही उत्थे मैं बनाई गया। गुरु साहब ने सोचे तो साडे कोल आके ही मैं करी जांदा, मैं एवें बनाई, मैं एवें बनाई, मैं एवं बनाई, इहदे चों आ नहीं होना, इहदे चों आ नहीं होना। ते महाराज कहंदे अच्छा जे भाई दया सिंह गोली चलाउण लंघेगी नहीं, महाराज भावें भाई दया सिंह जी चलाउण, जे फलाना सिंह चलावे सूरबीर लंघेगी ये नहीं महाराज नहीं, कोई चलावे भावें। ते सतगुरु हुण सोचदे इहदी मैं तां कढणी पैणी, इहदी मैं कढणी पैणी है, नहीं तां मैं ही लै जावेगा इथों। गुरु नानक दरबार चों तां तू लैण आया, मैं थोड़ो लैण आया। तू
महाराज कहते चंगा बई असी इहदी परख करांगे। ते क्योंकि वेग ओहो जिहा चल रहा सी अंदर, वेग विच बंदे नूं पता नहीं लगदा की कुछ कर जांदा। वेग ही चल रहा सी अंदर, मैं कहण दा आ बनाया आ कीता। कहंदे असी परख करांगे, सत वचन महाराज कर लियो। उसे समय लग्या मेरे तो की आख्या गया, पर हुण मुड़ नहीं सी सकदा। कर लियो महाराज। सारे सिख संगत सोची भी इन्ना प्यारा गुरसिख है तो हो की गया, ये मैं ही करी जांदा। घर वाली भी संगत च बैठी, ओदा भी दिल डरे। भोग पिया, समाप्ति हुई, बाहर गुरसिख मिले। गुरसिखा इन्नी सोहनी ढाल बना के वो ढाल दी हुई सिफत करी गया ते आखिर परीक्षा विच पै गया। जेड़ा गुरु घर आके मैं करेगा परीक्षा च पै जाएगा। जेड़ा मैं नहीं पाउंदी गुरु नूं तू पाउंदी, सिफत पाउंदी है, मैं नहीं पाउंदी। जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सहियो, ज्यों मंसूर चढ़ाया सूली फिर न सानू कहियो। जिन्हें भी इस इन्हां गलियां च जरा भी बेअदबी कीती, कहंदे फिर ना आखियो। बेअदबी की है इन्हां राहां विच कि कुछ मैं हो गया, कुछ मैनू ही पता है, कुछ मैनू ही जानकारी है। ये बेअदबी है गुरु घर च। जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सही हो, ज्यों मंसूर चढ़ाया सूली फिर न सानू कहियो। बेअदबां दी जाए ना इत्थे, होए मंसूर जो रहना सूली चढ़ना। बेअदबां दी जगह नहीं। महाराज कहंदे परीक्षा, सिख कहन लगे करी सेवा, पै गया परीक्षा विच। सिखा किधर नूं चला गया? करी तां सेवा, पै गया परीक्षा विच। गुरु जी ने क्या परीक्षा करेंगे, तू क्या सत वचन। वो कहंदा भी मैं कर बैठा हूं, की कमा की हुण की कर सकते, हो गया, भुल हो गई, कोई राह दसो। बाहर धर्म पत्नी बाहर मिली, सिंह जी तुसी की कीता? आपां तां परीक्षा च पै गए। सिंह जी गलती हो गई। होर दिल कंबिया। कुछ सिंगा ने भी किया, संगत ने, बीबी ने किया। फिर कहना की करिए? कहती भाई दया सिंह दे चरण फड़ लईए, कोई राह दसे। भाई दया सिंह जी को दोनों चले गए, पति पत्नी। भाई सिंह जी सानू दसो, भाई साहब तुसी गुरु साहब दे अनंद सेवक हो, मुखी सेवक हो संगत दे, साडे ते किरपा कर दिओ, सानू राह पा दिओ। असीं तां परीक्षा च पै गए। सेवा करके तां मान मिलना सी गुरु घर चों, क्योंकि सेवा करके जेड़ा मान ना करेगा ते जेड़ा सेवा करके मान करेगा, मान हंकार, उन्होंने गुरु परीक्षा च पावेगा। सेवा करके जेड़ा निर्माण हो जाएगा, गुरु अनुमान देवेगा। भाई दया सिंह को गए, सानू बख्शवा दियो जी, कृपा कर दियो, भुल हो गई, गलती हो गई। भाई दया सिंह जी ने कहा क्यों करो, चिंता ना करो, जे तुसी महसूस करदे हो सिंह जी गलती हुई, तुसी तैयारी करो, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ,
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਪਰ 5 ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਓ। 5 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਰੀ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕੋਤਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਪ ਤਪ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਵਾਓ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਕੋਤਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1760 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਉਦੋਂ। 17 ਕੋਤਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਇਕੋਤਰ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਇਕੋਤਰੀ 1760 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਠ ਚਲਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਚਲਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਕੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਬੋਦੀ ਘਸਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਿੜ ਪੈਣਗੇ, ਪਰਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤਾਰੇ ਦੀ ਬੋਦੀ? ਘਸਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੇ ਕੋਤਰੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ। ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਪਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 18 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ। 18 ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੇਰੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ
उदों बाबा श्याम सिंह जी वेले तो पहली देग है जिहड़ी हरमंदर साहिब दी, वो बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे चों बन के आउंदी है ते अज भी उदों तो। ये साधुआं दीयां सेवावां ने पंथ विच, साधुआं दीयां, संतां दीयां। हुण भी पहली देग बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे चों बन के आउंदी है। पहली देग दी अरदास जिहड़ी हुंदी हरमंदर साहिब ते ओ बाबा श्याम सिंह जी ने जदों भोग पै गया 7 दिनां बाद मंजे ते बैठे ने, बिरध सन, कीर्तन तद भी करते से। 120 साल दे जदों हो गए सी, उस दिन गुरबाणी दा शब्द आप याद करना बंद कीता सी, तां थोड़ी जी नजर कमजोर हुई सी। 120 वरियां दे सी जदों, ते 123 सालां दे तां सचखंड चले गए। 123 वरियां दे भाई दुख भंजन जी ने पहले गुरमुख साधुआं ने कहा सी कि शाम सिया एक बाणी दा शब्द रोज याद करना है, 7 बचन करके उवें मनते रहे। 120 साल दी उम्र च भी आप गुरबाणी दा शब्द याद करते सी। फिर एक दुकान वाला गुरसिख उन्हां दा संगी सी, ओदी सेवा लाई भी हुण तू मैनू शब्द याद कराउणा है, हुण मेरी नज़र कमजोर हो गई। फिर वो उन्हां नू एक शब्द रोज याद करवा के जाता सी, गुरबाणी दा। हरमंदर साहिब च पहला तरपहरे दा कीर्तन करना, कीर्तन करके बाहर एक झोला गल च लटकाया होना निक्का जिहा, एक लोहे दा अगे खुरचनी जी कोल छोटा जिहा झाड़ू, कबूतरां दियां बिठां साफ करदे जाना परिक्रमा च। एक पासे सरंदा टंगिया होना अपने, एक पासे वो झोला, कबूतरां दियां बिठां। फिर बाबा सवाया सिंह जी की शबील अज भी है हरमंदर साहिब दर्शनी जी मेन ड्योढ़ी वाली। 1.5-2 घंटे उत्थे भांडे मांजने बह के, ते उदों बाद सेठ राजे महाराजे बाहर हाथ जोड़ जोड़ खड़े हुंदे सी, बाबा जी कदों दर्शन दिंदे है। ये कमाइयां सन। नाभापति रिपुदमन सिंह हर समय अरदल विच रहिंदा सी, हर समय। जदों वो लीडर गए भोग पे तो बाबा जी मौज नाल बैठे ने मंजे ते उन्हां नूं कोई बुला नहीं सी सकदा। अखां बंद सी, अपनी मस्ती च बैठे सी मंजे ते। वाण दा मंजा दरखत थल्ले डाया डेरे च, ते वो जदों गए कुछ देर बह के घंटा सवा घंटा वो लीडर बैठे रहे, बाबा जी दी अखां बंद रहियां, वो मुड़ आए। बाद विच जदों बाबा जी ने आस पास सुरत लियांदी ते सिख सीगे कोल साधु, उन्होंने दसिया जी भी अंदरों हरमंदर साहिब चो लीडर आए सी। अच्छा, गुरु के बाग दा मोर्चा ਸਿੰਘਾਂ ते ਜਿਹੜਾ तशद्दद हो रहा वो बंद होया कि नहीं? कहंदे जी वो कहंदे अजे बंद नहीं होया। ते उसे तरह अखां फिर बंद कर लईयां ते बंद करके उंगल घुमाई ऊपर एवं ते कहण लग पे
हुण बंद कर दिओ, हुण तशद्दद बंद कर दिओ। इउं हुण ਸਿੰਘਾਂ ते डांग ना चलाओ, इउं बोल रहे ने बाबा जी। हुण ਸਿੰਘਾਂ ते सोटियां ना चलाओ, डांगा ना चलाओ, तशद्दद ना करो। जेड़े जेड़े लफज बाबा जी ने बोले वो लफज लिखे ने भाई साहब भाई वीर सिंह जी के साहित्य में कि आ लफज बोले ते उस वेले अखा खोलियां ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जाओ अंदर मुखी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भाव कमेटी ਨੂੰ कह आओ, बबर अकालियां ਨੂੰ कह आओ कि महाराज ने कृपा कर दी, हुण गुरु के बाग दे मोर्चे दा तशद्दद बंद हो। ਸਿੰਘ आए कहण अंदर, जदों अंदर कहण आए तो उन्हां नूं कह रहे ने कि बाबा जी ने सानूं भेजिया है कि हुण गुरु के बाग दा मोर्चा जिहड़ा हुण तशद्दद नहीं होएगा। गुरु साहब ने कृपा कर दी। उन्हां ही मिंटां सकिंटां विच टैलीग्राम आ गई अंग्रेज वालों, खबरां आ गईयां कि तशद्दद अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिता है। ते वो जिहड़े टैलीग्राम विच लफज लिखे हुए सी वो इंग्लिश विच सी, वो लिखे हुए ने किताब च। वो ओही लफज ने उन्हां बाबा श्याम सिंह जी जिहड़ियां उंगल घुमा के गल्लां कहीआं उन्हां गल्लां दे अर्थ ने समझो उस इंग्लिश विच जो अंग्रेज ने हुक्म कीता कि इन्हां ते तशद्दद ना करो। जो बाबा जी ने मंजे ते बैठिया कहा ओही टैलीग्राम च आए, ओही टैलीग्राम च ते बंद हो गया। उत्थे बाबा जी ने संपट अखंड पाठ करवाया। उस संपट जो गुरबाणी का लग्या वो भी लिखिया होया उत्थे भी आ संपट लगाया। तो बाबा जी कहंदे सी कोतरियां शुरू करवाओ, धरती दा भार हल्का होवे। आ वे लड़ियां चलदियां ने गुरुद्वारा नानक सर चैरी, ये भी तुहाडे पुण्य बनदे ने, पुण्य वधदे ने। जिथे बाबा जी वो ग्रहां दे टकराव नूं रोक सकदे ने ते उत्थे साडे ग्रह विच पता नहीं किन्ने टकराव है। जे आपां बाणी नाल जुड़ांगे साडे ग्रह साडे घर दे टकराव किन्ने शांत होणगे, छाती मार लो। जिहड़ा धरती दे ग्रहां दे टकराव टाले जा सकदे ने उत्थे घर विच कोई टकराव ने वो नहीं टाले जा सकते। कोई सुरत मत दे टकराव ने, ख्यालां दे टकराव ने। जे भगती कीर्तन बंदगी गुरु साहब दे पाठ इन्हां विच जदों आपां भावना रखांगे साडे ते भी कृपा होवेगी, साडे घरां च भी सुख होएगा, साडे बच्चियां ते भी मेरा होणगियां, साडे धीआं पुत्र भी सुखी बसणगे। महाराज दया करे, कृपा करे। भाई तुसी लंगर तैयार करो ते 5 ਸਿੰਘਾਂ तो अरदास करवाओ। उन्होंने लंगर तैयार किया ते भाई दया सिंह जी नूं बेनती की, भाई जी तुसी ही चलो 5 ਸਿੰਘ लैके। भाई दया सिंह जी गए, लंगर छकिया, अरदास की कलगीधर पिता ए सिख तो गलती हो गई, भुल हो गई, डींग मार दी,
अभिमान कीता अहंकार कीता, मेरा करो महाराज सिख भुलन हार है। बच्चे ने जैसा बालक पाए सो पाए। लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़के बहु भांति, पौड़ पिता गल लावे पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। मार्ग पाओ गरीब नवाज, मेरा करो बख्श लवो सिख नो। ये आप दा बच्चा है, सिख आप दा पुत्र है। भाई दया सिंह जी ने अरदास की है। जथा सख्त उन्होंने सेवा की, सिंघां नूं विदा कीता है। अगला दिन आया हुण परीखिया दा। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਲੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਘੋੜ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਬਈ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਓ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆਓ ਢਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ। आई ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ। ਹੁਣ ਮੇਜ਼ ਟੇਬਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਬੰਦੂਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ੋਭਤ ਕਰਤੀ ਨੇੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ, ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ शिष्ट लेंदे ने, निशाना लाउंदे ने, निशाना बिनदे ने कि घोड़ा नहीं दबाउंदे, बंदूक टेबल ते रख दिंदे ने। फिर आस पास तकदे ने, सारी संगत हैरान कि महाराज ने शिष्ट बन्नी, निशाना लिया, घोड़ा नहीं दबिया, ते सिंह थर थर कंब रहा। महाराज ਪ੍ਰੀਖਿਆ ना लियो, महाराज ਪ੍ਰੀਖਿਆ ना लियो, सिख नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ च ना पायो। सच जानियो आपां ਪ੍ਰੀਖਿਆ चों नहीं पास हो सकते, आपां तां मेरा नाल ही पास हो सकते हैं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ना बने, ਪ੍ਰੀਖਿਆ च ना पैना कदे, ਪ੍ਰੀਖਿਆ वाला कर्म ना करना कदे, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अति कठिन है। माने मान। फिर सतगुरां ने बंदूक चुकी, निशाना लिया, फिर घोड़ा नहीं चलाया, फिर रख दी। तीजी बार फिर निशाना लिया, बंदूक रख के महाराज आसन ते बह गए। सिख पूछते महाराज निशाना नहीं लाया, कहते मैं की करा। कोई ढाल ते गुरु नानक साहब तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक हाथ ने सामने, मैं की करा। ढाल ते 9 पातशाहियां दे हाथ दिस रहे ने मैनू, मैं किवें निशाना लावां। ये 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ अरदास विच ताकत सी, सिख दे गुनाह बख्शण दे। महाराज कहते उत्थे हथ है, साडे वड्डियां दे हथ नजरी आ रहे, किवें निशाना लाइए। घर प्रसादा छकाउण दा इन्ना, इस सेवा दा इन्ना महात्म। सिख को पिलाए पानी, भाव कर गुर खैत, असमेत जग फल, सिख को जिवाई का। सिख नूं लंगर छकाउण दे इन्ने फल महात्म ने। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाई का। कहते 7 मंदिर सोने दे उसार के दान कर देवे, जिन्ना फल उन्हां दा है, उन्ना एक सिख नूं एक शब्द सिखाउण दा फल है। शब्द सिखाउण दे हुण 2 अर्थ ने, एक तां कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा शब्द सिखाउणा, एदा इन्ना फल, ते एक शब्द, क्योंकि तैसा पुन सिख को एक शब्द। एक शब्द की है,
एक शब्द है गुर मंत्र, एक शब्द है गुर मंत्र। किसे भुले भटके जेड़ा बेअमृती अजे अमृत नहीं छकिया, जिहदे कोल गुरु का शब्द नहीं अजे तक, जेड़ा शब्द दे लड़ नहीं लगे अजे तक, जिन्हें गुरु धारण नहीं किया अजे तक, उहदे कोल शब्द है ही नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु कह सकता है पर शब्द नहीं अजे उहदे कोल, गुर मंत्र नहीं उहदे कोल, जिन्हें अजे अमृत नहीं छकिया। ये गल सिखा देवे, ये गल समझा देवे कि सिख लै। वो क्यों सिखिया ये वाहिगुरु नहीं, ये सिखिया नहीं। ये सिखिया उस दिन पूरी होनी है जिस दिन अमृत छकेगा, गुरु दे लड़ लगेगा। पंज प्यारियां तो अमृत छक के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर पंज प्यारे जदों तैनूं वाहिगुरु मंत्र देणगे, वो सिखिया है। जैसे सत मंदिर कंचन के ओसार देने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। एवें प्रेरणा दे के किसी नूं गुरु दे लड़ ला देवे, सत मंदिर सोने दे कोई उसार के दान कर देवे ना फड़। चौथी तुक विच कहंदे ने, जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहूं, जिवें होर मत्तां दे साधुआं दे कोई 20 बारी जाके दर्शन करे जिन्ना फल है पुण्य है, कहंदे तैसा पुण्य सिख को चाप पग सुआएगा। मैं पहला बेनती कीती सी, ये बाणी उन्हां सदियां दी है जदों चलदियां चलदियां भी आम पिंडां च धर्मशाला च गुरसिख रुकदे सी, थके हुंदे सी, ते बहुत सारे शरधा वाले सिख नियम बनाउंदे सी भी लंगर भी लैके जाना है ते उन्हां दे इशनान भी करा के आउणा है, ते थोड़ा बहुत जेड़े उम्र दे बजुर्ग होण उन्हां दे पैर भी लत्तां घुट के आउणियां। ए भाई गुरदास जी उस सिख दी सेवा ते मोहर ला रहे हैं कि चाप पग सवाएगा, ओदी मुट्ठी चापी करके उन्हें सवा देना। इन्ना फल है कि आन मत दे किसे साधुआं दे 20 बार दर्शन करन जाए, इन्ना फल। तो ये बई सेवा दा फल। इन्ना दे नाच हुण बाबा करतार सिंह जी हुणे दस रहे सी कि 21 तरीक नूं लड़ियां शुरू हो जानियां ने। सरदार गुरदेव सिंह जी भी कल जिक्र कर रहे सी कि कल पूर्णमाशी भी है, दीवान है शाम दा। कल भाई जसबीर सिंह दे घर भी सत्संग है शाम दा। उथों सत्संग करके फिर आपां गुरुद्वारा नानक सर चहरी विखे पूर्णमाशी दे दीवान ते भी जाना। गुरु महाराज कृपा करन। बाबा करतार सिंह जी ने दसिया भी 21 तरीक नूं लड़ियां शुरू होनियां भी, हुण होम होमा के सेवावां करनियां। अज सारा प्रसंग गुरु घर दी सेवा ते चलिया, सिख संगत दी सेवा ते, सिख दी सेवा ते, साध संगत दी सेवा ते, लंगर दी सेवा ते, पानी का गिलास पिया देना, कुरुक्षेत्र दे तीर्थ दा फल, इन्ने महान फल ने। ते ए जेड़े अस्थानां ते एवें दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने, इकोत्रियां शुरू हुंदियां ने, ये महाकुंभ हुंदे ने। गुरबाणी द्वारा, गुरमत द्वारा गुरसिख ने बाणी नाल जुड़ना है। लड़ियां अखंड पाठ साहबाना दियां किन्ना उत्साह हुंदा तुहाडे फैजाबाद अपने फ्रेजनो विच, फ्रेजनो दी साध संगत विच, कैलिफोर्निया च, होर भी लाग लाग शहरां नूं किन्ना उत्साह हुंदा है। किन्ने दूरों दूरों आगे शहरां तो भी पाठ कराउंदे ने गुरसिख।
मेरा ने चढ़दी कला च सेवावां करनियां, सब ने पुण्य फल प्राप्त करना। बाबा जी सारियां दियां झोलियां भरन। कई सरदार गुरदेव सिंह जी मोहार जी भागां वाले परिवार ने अज जिन्हां दे गृह विखे सतसंग होया ते ये साध संगत चल के आई है। शामां दा दीवान सजिया, सोदर रहरा साहिब जी दे पाठ होए, कीर्तन होया, गुरु के इतिहास विचों कथा कहानियां होईयां, गुरमत विचारा होईयां। घर विच ही दीवान सजिया, सचखंड बनया होया। महाराज कृपा करन, रहमता करन, लो लंगर चलदे रहन, संगतां छकदियां रहन, आया गुरसिख वरसाउंदा रहे। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। सतगुरु सदा घर विच सुख शांति आनंद रखण, बच्चिआं नूं आग्याकारी होण दा माण बख्शण, मेरा करन, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।